Hello and a very good evening, everyone. How are you guys doing today? Hi, everyone. Good evening, Arnav, Bhavya, Harjab. Hi, Janvi, Jay. Good evening, Tamanna, Pranish. Hi, Manthan, Mukund, Pranish, Priyanshu, Rishit, Samriddhi, Shreyas, Shubh. Hi, Vedant, Yashasvi, Vedika, Urvashi. How are you? I'm good, Urvashi. I'm good, Priyanshu. How are you? How are you? Rishit, Harsh. Hi, Shobit. My voice is breaking. Is it better now, Urvashi? I'm doing well, Harsh. What about you? Good evening, Suhani. Jai Hind, Shreyash. Shreyash, by any chance, are you a part of NCC, or you're just a patriotic person? Hi, Janvi, Anya. Good evening, Pavan. How are you? Good evening, Naman, Krishna. आज नींद आ रहा है. नींद तो हर दिन आता है, Anya. Yes, Harsh. Mine was okay, Krishna. Good evening, Nirvika. That's a nice name. Okay, so once again, a very good evening, everyone. My name is Abhishek Soni, and I welcome all of you to this session. This is a continuation of the previous session on modifiers and parallelism. In the previous one, we talked about modifiers. We tried to solve some concepts based on modifiers as well. We also learned the concepts related to modifiers, the types, and the examples. So in this particular session, we'll be learning the concepts of parallelism first, and later on we'll try to solve some questions on parallelism. So shall we start the session now? Do I have your permission? Yes, Urvashi, I specifically mentioned it in the previous session that I'll share the PDF after the next session. Okay, chali. Hi, good evening, Anshika. Sai Shweta, good evening. Now everyone focus. So these are the rules of parallelism. ठीक है, parallelism के rule पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है. The first rule here is when you are listing two or more elements using a comma, then the same kind of grammatical format should be used throughout the sentence. अब देखो parallelism होता क्या है. अब बोलोगे सर आपने रूल्स बताना स्टार्ट कर दिया, होता क्या है वो तो बताया ही नहीं. तो ये सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ what exactly is parallelism. Do you see this line? Do you see this line? Yes? Okay. Do you see this one then? Yes? Are both parallel? Hmm? Yes. Are they same though? No. So that basically means parallelism में होता क्या है? You are given one sentence जिसमें दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग पार्ट्स होने वाले हैं. हमसे बोला जाएगा कि ये सारे पार्ट्स जो है ये सिमिलर स्ट्रक्चर में होने चाहिए. दे आर नॉट सेम बट दे आर सिमिलर. मतलब क्या हुआ? इफ यू आर गिवन अ सेंटेंस, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे करके बताता हूं. फॉर एग्जांपल योर सेंटेंस इज आई लाइक डांसिंग, कॉमा, स्विमिंग and to play cricket. Now, the question here is the sentence grammatically correct? बताओ जरा, is it correct? क्यों करेक्ट नहीं है? ये करेक्ट है? रुको पोल लॉन्च करता हूं. पोल पोल वैसे नहीं पता चलेगा, बहुत सारे लोग बच जाते हैं ऐसे में.
हाँ अब बताओ। पोल में आंसर दो जरा, पोल में। आई विल एक्सप्लेन वेदिका, डोंट वरी डोंट वरी। So what we have here is 16% correct, 84% incorrect. देखो यहां पर क्या हुआ है, मैंने तीन चीजों को लिस्ट किया है. फर्स्ट वन इज डांसिंग, सेकेंड वन इज स्विमिंग, थर्ड वन इज टू प्ले क्रिकेट. अब देखो दो चीजें अभी से समझ लो. when you have this ing form of the verb, this is called gerund. First thing you need to understand here, this is called gerund. And when you have to plus verb, this is called infinitive. To plus verb is called infinitive. ठीक है. अब द पॉइंट इज, अगर आपके सेंटेंस में ऐसे तीन चार पार्ट्स को मैंने कॉमा लगा लगा कर लिखा है, जैसे यहां लिखा है डांसिंग, फिर कॉमा, फिर स्विमिंग, फिर आ गया टू प्ले क्रिकेट, तो डांसिंग इज जेरंड, आईएनजी फॉर्म है. स्विमिंग इज जेरंड, आईएनजी फॉर्म है. और टू प्ले क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब इंफिनिटिव. अग्री और नॉट. तो यहां पर क्या हो गया, जी एंड जी, दैट इज डांसिंग एंड स्विमिंग, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर सिमिलर. They are not same but they are similar. Both are gerunds ना, ing. लेकिन to play क्या हो जाएगा, dissimilar. क्यों? Because it is infinitive. तो इसको बोला जाएगा parallelism based error. क्यों बोला जाएगा parallelism based error? Because two parts in the sentence follow the same structure, both are gerunds, but one part in the sentence does not follow the same structure, that is infinitive. क्या होना चाहिए था, या तो आप तीनों जेरेंड 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 लिखोगे, या तो आप तीनों इंफिनिटिव 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 लिखोगे. दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. तो आप जेरेंड इंफिनिटिव इंफिनिटिव जेरेंड ऐसा नहीं कर सकते. दैट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पैरेलिज्म, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ग्रामर. इस चीज को बोला जाता है पैरेलिज्म. मतलब एक पैरेलल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना इज कॉल्ड पैरेलिज्म. तो क्या करना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए, डांसिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट. नाउ इट बिकम्स जेरेंड. तो तीनों जेरेंड 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 हो गए. इट इज पैरेलल नाउ, सिमिलर स्ट्रक्चर. यस साई श्वेता. तमन्ना, इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है. तो या तो आप इंफिनिटिव 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 करो, या फिर जेरेंड 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 करो. But sir, statement is correct. Which statement? The above one, na? Playing is correct. To play is incorrect. Okay, दीक्षा? तो ये रूल होते हैं पैरेलिज्म के. कृष्णम, अब अगर आपको इंफिनिटिव में लिखना है तो आप क्या करते हो, टू को आप पहली बार कॉमन ले लेते हो, फिर आप V1 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 लिख देते हो बस. तो टू एक बार कॉमन हो जाएगा, फिर V1 V1 V1. तो आई लाइक टू डांस, स्विम एंड प्ले क्रिकेट. क्लियर है. तो टू कॉमन हो जाएगा, बाकी में V1 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 आ जाएगा. तो अब इसके रूल समझ लेते हैं. फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, वेन एवर यू आर लिस्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स यूजिंग अ कॉमा, द सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड throughout the sentence, and that is what I explained with the help of example here. Same kind of grammatical format. कैसे? Either gerund, 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 or infinitive, infinitive, infinitive. So it should be gerund here. Example: the reasons why Rishabh could not join Harvard were insufficiency of funds, responsibility of supporting his family, and he was in need of full-time employment. Now tell me, is this sentence correct or incorrect? Explain example again. Which example, Daksh? Dancing वाला या ये वाला? Dancing is gerund, swimming is gerund, playing is gerund. तो gerund 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 करेक्ट हो जाएगा. To play is infinitive, वो इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके दक्ष. ठीक है. तो अब अगर यहां पर ध्यान से देखें, सो द रीजंस व्हाई ऋषभ कुड नॉट जॉइन हार्वर्ड, रीजंस लिस्ट किए मैंने. लिस्ट ऑफ रीजंस. देखते हैं कैसे लिस्ट किया है. पहला रीजन, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स.
क्या ये एक फ्रेज है, क्लॉज है, क्या है, बताओ जरा मुझे, व्हाट इज इट? दैट इज ऑल्सो करेक्ट सोहम, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग वे टू राइट इट, तो आपको शॉर्ट में टू को कॉमन लिख के लिखना पड़ता है. It is a phrase, insufficiency of funds. It is a phrase, okay. Then comma आ गया. Responsibility of supporting his family. Again, it is a phrase. And then we have what? And he was in need of full-time employment. तो यहाँ पर क्या आ गया? He was. He is your subject. Was is your verb. मतलब क्या बन गया? Subject plus verb means now it is a clause. तो अब क्या हो गया? पहले आपके सामने एक फ्रेज आया, फिर आपके सामने एक फ्रेज आया, एंड देन दीज टू फ्रेजेस वर फॉलोड बाय अ क्लॉज. इज इट द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द सेंटेंस? टेल मी. नो. सो व्हाट डू यू नीड टू डू हियर? लेट्स से अगर मैंने बोला आपको दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड ये आपका पार्ट हो गया डी, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? अब नीचे वाला डी है, डी में एरर. तो ऐसे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं एग्जाम में, स्पॉटिंग दी एरर में. आपको स्पॉट करना है कौन से पार्ट में एरर है. डी पार्ट में एरर. कैसे पता चला? बिकॉज बाकी के दो फ्रेजेस हैं, ये वाला क्लॉज है. तो कैसे करोगे? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग हिज फैमिली, एंड नीड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. अभी क्लियर हुआ? एंड क्या हो जाएगा? एंड नीड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. दिस इज नाउ अ फ्रेज. नाउ ये क्लॉज नहीं है, अब फ्रेज बन गया. तो दिस इज द करेक्ट वन. Sir, if you don't see grammatically, these sentences are correct. Now, they are not correct grammatically. That's the reason, Diksha. अगर ग्रामेटिकली करेक्ट होते तो हम उनको सीखते ही नहीं. राइट? दे आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली. ठीक है, ही वॉज रिमूव हो जाएगा बिकॉज वो क्लॉज बना देगा पवन. यहां तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन, एनीवन? आई एम ट्राइंग टू गो अ बिट स्लो बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं. बट दो दे आर मेकिंग सेंस सर. दीक्षा, I told you grammar works on rules. If you do not go according to the rule, then that is grammatically incorrect. Does not matter how it looks to you. ठीक है? The rule here is अगर आप एक सेंटेंस में लिस्ट कर रहे हो चीजों को, तो सारे चीजें सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए. सेकेंड रूल पर आते हैं. अगर इन अ क्लॉज अ वर्ड एंडिंग इन ing should be followed by another word in the same form, मतलब ing, और अगर ed फॉर्म आ रहा है तो ed फॉर्म. तो मतलब क्या हुआ? ing फॉर्म एंड ing फॉर्म, ऐसे लाइन से ing आएगा. और अगर ed फॉर्म आ रहा है वर्ब का तो ed वाला वर्ब फॉर्म आ जाएगा. डांस्ड मतलब डांस्ड, और जो भी दूसरा कोई वर्ब होगा वो ed में आ जाएगा, और यहां पर ing में आ जाएगा. Speaking the sentence informally will be correct or not? Informally, everything is correct informally. Jagrat. Sits you down, that is also correct informally. मीनिंग तो निकल करके आ रहा है ना. But the point is, एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश चेक होती है ना. इंग्लिश में तो मैं कुछ भी बोल दूंगा. Sir, when we will speak, then also we should check grammar rule first. Yes, Diksha, absolutely. Yes, Anshuman. V3 form, or V2 form of the verb, या V1 form of the verb, या V ing form of the verb, या 2 plus verb. So that basically means सारे forms of the verb in a sentence should be similar. Everything matters. Yes, Anya. ठीक है? Take a look at this example. Walking to the place of work is easier for me than to take the bus. Is it correct or incorrect? Jagrit, in interviews of
ऑब्वियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मल इंग्लिश की बात चल रही है, तो इंग्लिश में तो सब कुछ चेक होगा ना। अगर वो गलत है मतलब वो गलत है, अब वो फॉर्मल इनफॉर्मल चेक ही नहीं हो सकता, वो गलत है मतलब गलत है, ठीक है। चलो देखो अब, सो वॉकिंग टू द प्लेस ऑफ वर्क इज इजियर फॉर मी दैन टू टेक द बस। नाउ वॉकिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, टू टेक से। बट वॉकिंग इज वॉट, इट इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब इट इज जेरेंट, एंड टू टेक इज टू प्लस V1 फॉर्म, मतलब इट इज इन्फिनिटिव। तो क्या हो गया, वन इज जेरेंट, अनदर वन इज इन्फिनिटिव, दैट इज इनकरेक्ट। तो क्या होना चाहिए, वॉकिंग टू द प्लेस ऑफ वर्क इज इजियर फॉर मी दैन टेकिंग द बस। तो आप टू वॉक से स्टार्ट नहीं कर सकते हो जनरली, इन्फिनिटिव से आप सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, जेरेंट से आप कर सकते हैं। तो इसीलिए टू वॉक नहीं हो सकता, इसीलिए आपको वॉकिंग नहीं करना पड़ेगा। तो वॉकिंग आ गया मतलब टेकिंग आना चाहिए, तो ये टू टेक बिकम्स इनकरेक्ट। क्या इतना क्लियर हुआ एवरीवन? यस, कुछ भी क्वेश्चंस? Can we start this sentence with for me? For me, yes, absolutely जय। आपको जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना है वो तो आप कर सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ क्लॉज, तो फिर आपको पता है क्या होना चाहिए, आगे भी क्लॉज ही आना चाहिए। देन द सेकेंड पार्ट शुड ऑल्सो बी अ क्लॉज। तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रेज और क्लॉज या क्लॉज और फ्रेज कर दो, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया। क्लॉज क्लॉज क्लॉज, phrase phrase phrase, it's as simple as that. Definitely Diksha, they are checking everything, that's what they are there for. We are ready with our jackets in case of raining. अब बताओ, is it correct or incorrect? देखो, वी आर रेडी विद आवर जैकेट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, यू आर गिवन वी, वी हियर इज योर सब्जेक्ट, आर मतलब ये आपका वर्ब बन जाएगा, बिकॉज यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट अ क्लॉज। तो ये आपका क्या है, एक क्लॉज है। एंड देन यहां पर ये बीच में आया कंजंक्शन, फिर रेनिंग ऑफ रेनिंग, तो ये तो कुछ गलती हो जाएगा भाई। आपको दो चीजों को कनेक्ट करना है ना, तो जब दो चीजों को कनेक्ट करना है तो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ क्लॉज, दैट मीन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड ऑल्सो बी अ क्लॉज, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो कैसे करना पड़ेगा, ये तो फ्रेज बन जाएगा। तो क्या करोगे, इन केस इट रेन्स, कैसे, तो इट बिकम्स योर सब्जेक्ट नाउ, रेन्स बिकम्स योर वर्ब नाउ, इट बिकम्स अ क्लॉज। तो सेकेंड पार्ट ऑल्सो बिकम्स अ क्लॉज। Now you have a very, now you have a parallel sentence here. Parallel sentence कैसे, we are ready with our jackets in case it rains. Sir, from we to jackets is, it is clause. Yes, Diksha. Anyone, any questions now, doubts? But in case it rains doesn't have an individual meaning. It does, Sudarshan. In case it rains मतलब अगर बारिश होती है, आप बोलते हो ना इट्स रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। क्लियर है सुदर्शन? नेक्स्ट रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। इज इन केस द रेन स्टार्ट्स, करेक्ट। इन केस द रेन स्टार्ट्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, देर इज नो प्रॉब्लम, as long as you are making it a clause, that's correct. अब रूल 4 क्या बोल रहा है, इफ अ सेंटेंस यूजेस एन इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज मतलब टू प्लस वर्ब, क्लॉज और क्लॉज बेसिकली, तो इन्फिनेटिव फ्रेज और क्लॉज, दैट इज अ फ्रेज स्टार्टिंग विथ टू, then the same kind of phrase or clause should be used till the end। मतलब क्या हुआ कि टू प्लस वर्ब से स्टार्ट होने वाला फ्रेज, और बहुत ध्यान से सुनो, टू प्लस वर्ब, अ फ्रेज स्टार्टिंग विथ टू प्लस वर्ब और अ क्लॉज स्टार्टिंग विथ टू प्लस वर्ब,
should be followed throughout the sentence. 2 plus verb phrase, 2 plus verb phrase, 2 plus verb phrase, or 2 plus verb clause, 2 plus verb clause, 2 plus verb clause. तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है भाई. पैरेललिज्म का बेसिक एक ही रूल है, जो स्ट्रक्चर है पहले वाले में सारा सेंटेंस में वही स्ट्रक्चर आ जाएगा. ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये देखो. शी आस्क्ड मी टू सिंग एंड ऑल्सो डांसिंग विद हिम. अब बताओ, in case it starts raining, that is also correct. जनरली क्या करते हैं हम, सेम टेंस यूज करते हैं. तो अगर आप यहां पर जाओ तो यहां क्या लिखा है, वी आर रेडी, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स द सेकेंड पार्ट शुड ऑल्सो बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो जनरली आपको सेम टेंस फॉलो करना होता है. तो शी आस्क्ड मी टू सिंग एंड ऑल्सो डांसिंग विद हिम. टू सिंग क्या हो जाएगा आपका, एक इन्फिनेटिव हो जाएगा, एंड डांसिंग क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा. तो इन्फिनेटिव एंड जेरेंड और जेरेंड इन्फिनेटिव बोथ डू नॉट गो टुगेदर. क्या करना पड़ेगा, तो शी आस्क्ड मी टू सिंग एंड ऑल्सो डांस विद हिम. ठीक है, तो इट शुड बी डांस इंस्टेड ऑफ डांसिंग. क्लियर हुआ है कुछ. अब आप चाहो तो टू डांस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जेरेंड्स आर आईएनजी वर्ड्स, यस ओम. एग्जाम्पल अगेन, व्हाट डू यू मीन दक्ष, ये वाला एग्जाम्पल बोल रहे हो. अच्छा, तो शी आस्क्ड मी टू सिंग. अब टू सिंग क्या है, इट्स एन इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, एंड ऑल्सो डांसिंग. डांसिंग क्या है, वी प्लस आईएनजी मतलब जेरेंड फॉर्म. तो अभी बताया जेरेंड एंड इन्फिनेटिव कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर. या तो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव और जेरेंड जेरेंड. तो पहले इन्फिनेटिव आया है तो बाद में अब इन्फिनेटिव डाल दो. तो टू सिंग विल बी फॉलोड बाय टू डांस. तो टू कॉमन ले लो या दोनों में यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. अगर टू डांस यूज करना है तो ऑल्सो रिमूव करना पड़ेगा. शी आस्क्ड मी टू सिंग एंड ऑल्सो टू डांस विद हिम. नो, ऑल्सो रिमूव करने की क्या जरूरत है. दोनों करेक्ट है उर्वशी. एनी क्वेश्चंस नाउ, दक्ष, एनीवन एल्स. सर, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी सॉ टुडे, देयर वी यूज्ड टू प्ले with other ing words. If we will speak in interviews like this, then they will see to it. Yes Diksha, they will. Yes Krishnam, both are correct. क्लियर है. इफ यू यूज टू डांस देन वी विल यूज ऑल्सो. कर सकते हैं अन्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्सो का उसमें कोई रूल नहीं. डेफिनेटली दीक्षा, दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरव्यूज ना. दे आर जजिंग यू ऑन एवरीथिंग, योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन, योर ग्रामर, योर एटिकेट, योर बिहेवियर, योर कॉन्फिडेंस. दे आर जजिंग यू ऑन एवरीथिंग. ठीक है. आई लाइक सिंगिंग, टू डांस एंड जॉगिंग. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, बताओ. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. क्यों, बिकॉज यहां पर आ गया सिंगिंग विच इज जेरेंड, टू डांस विच इज इन्फिनेटिव, एंड जॉगिंग विच इज अगेन जेरेंड. तो जेरेंड इन्फिनेटिव जेरेंड बताया था, सेम होना चाहिए. सेम मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर, सेम तो नहीं है. तो इट शुड बी आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड जॉगिंग. आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड जॉगिंग. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल 5, व्हाट डज इट से. So if the first verb in a sentence is in active voice, then all the verbs that follow it should be in active voice. अब ये बड़ा अच्छा रूल है. कल शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो पैसिव वॉइस है तो उसमें वो तो मॉडिफायर करेक्ट होना चाहिए. रूल ये कहता है अगर आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस तो आपका पूरा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में ही होना चाहिए. आप एक ही सेंटेंस में दो वॉइस यूज नहीं कर सकते. एक्टिव एंड पैसिव कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, राइट. सिमिलरली अगर आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड ऑल्सो बी रिटन इन पैसिव वॉइस, राइट. इट कैन नॉट बी रिटन इन एक्टिव वॉइस नाउ. तो वन सेंटेंस शुड बी रिटन इन वन वॉइस थ्रू आउट in all the clauses.
क्लियर? एक्टिव पैसिव ब्रीफली एक्सप्लेन. ओके अन्य, पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता. इन सिंपल लैंग्वेज, जब भी आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉलो करते हो तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. बट जब भी आप ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट फॉलो करते हो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. तो इफ योर सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस तो वो एक्टिव वॉइस थ्रू आउट द सेंटेंस होगा. अगर वो पैसिव में लिखा है तो पैसिव वॉइस थ्रू आउट द सेंटेंस होगा. अगर आपके बैच में वॉइस कवर नहीं हुआ है, डू नॉट वरी, वो कवर हो जाएगा. दैट इज एज सिंपल एज दैट. Arnav, we are talking about parallelism. Can it be like I like to sing, dance and jog? Yes, Om. ठीक है, चलिए. तो अगर पैसिव होता है पैसिव, एक्टिव होता है एक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर बेक्ड द केक एंड द ओवन वॉज क्लीन्ड बाय हर. क्या हुआ यहाँ पर? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? बताओ. तो my mother baked the cake. My mother is the subject here. Baked is the verb here. The cake is the object here. तो subject verb object अभी मैंने बताया. Subject verb object structure is written in active voice. So the first part of the sentence, from my mother to cake, this is written in active voice. Okay, this is the first clause. Then and के बाद में we have the second clause. The oven was cleaned by her. अब the oven here is the object. Was and cleaned is the verb. Her is the subject here. That means object verb subject order आ गया. तो passive voice. That means आपने क्या कर दिया? एक एक्टिव और एक पैसिव कर दिया. तो दिस इज क्लियरली इनकरेक्ट. कैसे करना पड़ेगा? दोनों एक्टिव या दोनों पैसिव. तो बिकॉज द फर्स्ट वन इज एक्टिव, आप सेकेंड वाले को भी एक्टिव बना दो. तो माई मदर बेक्ड द केक एंड क्लीन्ड द ओवन. एंड cleaned the oven. This is correct. Okay, Diksha, it will be completed well before your examination. I cannot commit a clear-cut date though, because we have a common subject here, and that common subject is my mother. So I don't need to write it down again after and. So my mother baked the cake and cleaned the oven. तो ये correct है. How will we convert it into passive? मैत्री, अगर पैसिव वॉइस नहीं हुआ है आपके बैच में तो इट विल बी कवर्ड लेटर ऑन. वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का. Yes, Diksha, you should start practicing mocks now. Can it be and she cleaned the oven? But Vedika, same problem. You are now repeating the same word because there is only one subject. We don't need to mention it again. Okay. Anya, same point. There is only one subject. There is no need to mention it again. और फिर से ये पैरेललिज्म का एग्जांपल है. देखो, बेक द केक ईडी फॉर्म, क्लीन द ओवन ईडी फॉर्म. तो ईडी फॉर्म पैरेललिज्म. वेयर इज द क्लासरूम वर्कशीट अपलोडेड? राइट बिलो द लेक्चर वीडियो, जहां पर उस लेक्चर का वीडियो होता है उसके नीचे. ठीक है. नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है? रूल नंबर 6. अब दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. बाय द वे, कौन से वर्ड्स? कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब क्या है? व्हाट इफ वी कन्वर्ट फर्स्ट वन इनटू पैसिव? जागृत, please read the rule again. If the first verb in a sentence is in active voice, then all the verbs that follow it should be in active voice. मतलब हमको चूज किसके बेसिस पे करना है? फर्स्ट वर्ब के बेसिस पे करना है. Sir, if again subject is used, then it is incorrect. No, Diksha, it is not incorrect, but that is redundant here. Redundant का मतलब आप in unnecessarily sentence का length बढ़ा रहे हो, which is not required. ठीक है. तो both and is called a correlative conjunction. Both is always followed by and. Not only is always followed by but also. Either is always followed by or. Neither is always followed by nor. No sooner is always followed by than. Between is followed by and. तो these are called correlative conjunctions. अब point यहां पर ये कहता है, और by the way एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं.
यस आन्या, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे? तो रूल ये कहता है कि बोथ एंड अगर आप यूज कर रहे हो तो बोथ जिसको कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को, बोथ मीन्स कनेक्टिंग टू थिंग्स ना, तो बोथ के बाद में वो पहली चीज आएगी और एंड के बाद में वो दूसरी चीज आएगी। मतलब ये हुआ है कि बोथ एंड शुड बी फॉलोड बाय सेम ग्रामेटिकल रैंक। अगर बोथ के बाद में नाउन है, एंड के बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। बोथ के बाद में अगर एडजेक्टिव है, एंड के बाद में एडजेक्टिव आएगा। बोथ के बाद में फ्रेज है, एंड के बाद में फ्रेज आएगा। बोथ के बाद में क्लॉज है, एंड के बाद में क्लॉज आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन पैरेलिज्म। दे शुड बी फॉलोड बाय सिमिलर ग्रामेटिकल रैंक। ठीक है, क्लियर है? तो प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द टर्म्स दे कोरिलेट। बोथ जो दो चीजों को कोरिलेट कर रहा है उनके जस्ट पहले आएगा, एंड उसमें से दूसरी चीज के जस्ट पहले आएगा। नॉट ओनली उस चीज के पहले आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, बट ऑल्सो उस चीज के पहले आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होगा। टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। द नर्स नॉट ओनली लुक्स आफ्टर द पेशेंट बट शी कुक्स फॉर द फैमिली एज वेल। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? टेल मी। Come on, come on, come on. तो there are two problems here. First problem देखो, the nurse not only looks after the patient but she cooks for the family as well. अभी मैंने बताया not only is followed by what but also. Anything else? No. तो but also तो आया ही नहीं, only but आया है। Second problem, ये as well कहां से आ गया? But also और as well mean the same. But not only is followed by but also. As well नहीं आता, तो this is incorrect here. तो the nurse not only looks after the patient but she also cooks for family. This is also correct. या ऐसा भी लिख सकते हो, the nurse not only looks after the patient but also cooks for family. तो she आप चाहो तो लिख सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप बट के बाद शी नहीं लिखते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट ओनली इज फॉलोड बाय लुक्स आफ्टर हर बट ऑल्सो इज फॉलोड बाय कुक्स फॉर हर फैमिली, तो वो करेक्ट है। तो द पॉइंट इज शी चाहे तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, उसमें कोई रूल नहीं है। इफ एज वेल रखना है तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो हटा दो, उर्वशी। तो क्या हो जाएगा? द नर्स नॉट ओनली लुक्स आफ्टर द पेशेंट बट ऑल्सो कुक्स फॉर फैमिली, और बट शी ऑल्सो कुक्स फॉर फैमिली। बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। नॉट ओनली के बाद में क्या आया है? वर्ब आया है, लुक्स आफ्टर इज अ वर्ब। बट ऑल्सो के बाद में क्या आया है? कुक्स मतलब वर्ब। तो बोथ आर फॉलोड बाय सिमिलर ग्रामेटिकल रैंक। दिस इज द रूल। क्लियर है? इफ शी नहीं होगा तो बट कॉन्ट्रडिक्शन शो नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि बट ऑल्सो के साथ में आया है। ठीक है, अकेला नहीं आया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है दैट यू गाइस जो समझा रहा वो समझने को छोड़ के तुम बाकी दुनिया भर की चीजें पूछ डालोगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं तब से? शी यूज करना है तो करो, नहीं यूज करना है तो मत करो। इट डज नॉट मैटर। As long as you're following the same grammatical structure, it does not matter. फिर से देखो एक बार। Not only should be followed by but also, तो ये वाला तो completely incorrect था। ठीक है, as well आ गया और but also नहीं आया है, also is missing. This was incorrect. ठीक है, अब सेकंड वहां पर यहां पर देखो, द नर्स नॉट ओनली इज फॉलोड बाय लुक्स आफ्टर। लुक्स आफ्टर इज अ वर्ब, दैट मीन्स बट ऑल्सो इसके बाद में आना चाहिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट, बट ऑल्सो शुड बी फॉलोड बाय अ वर्ब, बिकॉज नॉट ओनली इज फॉलोड बाय अ वर्ब बट ऑल्सो शुड बी फॉलोड बाय अ वर्ब। तो बट
ऑल्सो, शी बीच में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, बट शी ऑल्सो, बट ऑल्सो कुक्स क्या हो जाएगा, कुक्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो नॉट ओनली इज फॉलोड बाय वर्ब बट ऑल्सो इज फॉलोड बाय वर्ब, दैट इज वॉट वी नीड टू चेक। क्या आ रहा है, वर्ब वर्ब आ रहा है या नहीं, ठीक है। बताओ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? शी ऑल्सो कुक्स फॉर द फैमिली, बट कहां पर है लेकिन, विच वन दीक्षा? करेक्ट है ना, वही तो बता रहा हूं मैं, दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, आई लाइक बोथ ईटिंग अ बनाना एज वेल एज ड्रिंकिंग जूस, करेक्ट और इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई। आई लाइक बोथ, ना बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड, मैंने बताया था बोथ और एंड एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, पर यहां पर क्या आ गया, एज वेल एज, इनकरेक्ट, दैट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर बोथ। अगर आपको एज वेल एज यूज करना है, यू कैन नॉट यूज बोथ देन। तो आई लाइक ईटिंग अ बनाना एज वेल एज ड्रिंकिंग जूस, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लाइक बोथ ईटिंग अ बनाना एज वेल एज ड्रिंकिंग जूस इज इनकरेक्ट। क्या होगा फिर, तो बोथ इज फॉलोड बाय जेरेंड, दैट मीन्स एंड शुड बी फॉलोड बाय जेरेंड, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक बोथ ईटिंग अ बनाना एंड ड्रिंकिंग जूस, एंड इज फॉलोड बाय जेरेंड, करेक्ट है। बोथ इज फॉलोड बाय जेरेंड एंड इज फॉलोड बाय जेरेंड, करेक्ट है। क्लियर है? रिमूविंग बोथ फ्रॉम द सेंटेंस वुड मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। हाँ, अगर आप एज वेल एज यूज करना चाहते हो तो। शी बोथ कुक्स पिज्जा एंड मैगी, अब देखो करेक्ट एंड करेक्ट बताओ। समझते हैं। सो शी बोथ कुक्स पिज्जा एंड मैगी, बोथ इज फॉलोड बाय कुक्स विच इज अ वर्ब एंड इज फॉलोड बाय मैगी विच इज अ नाउन। तो एक के बाद में क्या आ गया, वर्ब, दूसरे के बाद में क्या आ गया, नाउन। दिस इज नॉट अ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो क्या करें, या तो दोनों के बाद में वर्ब डालो या दोनों के बाद में नाउन डालो, बट द पॉइंट इज वर्ब कौन सा है, एक ही वर्ब है, कुक्स ही तो वर्ब है, तो आप दो बार कुक कुक लिखोगे क्या, कुक 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 कुक, वही चलते रहेगा, चोली के पीछे क्या चालू हो जाएगा फिर, तो दैट इज इनकरेक्ट ना। तो क्या करना पड़ेगा, आप वर्ब को यहां से हटा दो। शी कुक्स बोथ पिज्जा एंड मैगी, शी कुक्स बोथ पिज्जा एंड मैगी। कैसे करेक्ट हुआ देखो अब, नाउ बोथ इज फॉलोड बाय पिज्जा विच इज अ नाउन एंड इज फॉलोड बाय मैगी विच इज अ नाउन, तो इट बिकम्स करेक्ट। एंड बोथ और बोथ एंड किसके लिए यूज हुआ है यहां पर, पिज्जा और मैगी के लिए। वाई इज आर्टिकल द रिमूव फ्रॉम बिफोर फैमिली इन फर्स्ट एग्जाम्पल सर, कहां पर, द फैमिली का मतलब हो जाएगा स्पेसिफिक फैमिली, और फैमिली मतलब एनी फैमिली इन जनरल। तो आपको जो रेफरेंस, जो मीनिंग लाना है वो आप यूज कर सकते हो त्रिजाल। शी नॉट ओनली लाइक्स टू जॉग बट ऑल्सो टू स्लीप, करेक्ट इनकरेक्ट, come on come on, correct incorrect everyone। देखो, नॉट ओनली शुड बी फॉलोड बाय बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली आया है, बट ऑल्सो आया है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज करेक्ट, ओके, बट देन सेकेंड पॉइंट इज whatever part of speech or grammatical rank is written after not only, the same part of speech or grammatical rank should be written after but also as well. So not only is followed by likes which is a verb, but also is followed by to sleep which is an infinitive, becomes incorrect. No Trijal, I have not been launching polls as of now.
तो कैसे करेंगे भाई? वर्ब तो कॉमन है दोनों में। क्या वर्ब कॉमन है? लाइक्स कॉमन है। लाइक्स टू जॉग, लाइक्स टू स्लीप। तो दो बार लाइक क्यों बोलना, एक ही बार बोलो। तो लाइक्स को कॉमन बाहर निकाल लो। तो शी लाइक्स नॉट ओनली टू जॉग बट ऑल्सो टू स्लीप। अब चाहे तो आप टू कॉमन निकाल लो या टू दोनों में यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी लाइक्स नॉट ओनली टू जॉग बट ऑल्सो टू स्लीप। क्लियर है? नाउ नॉट ओनली इज फॉलोड बाय इंफिनिटिव बट ऑल्सो इज फॉलोड बाय इंफिनिटिव। दक्ष, इंफिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब। इंफिनिटिव is 2 plus verb. कोई बात नहीं जागृत, कभी कभी मैथ्स में इंग्लिश पढ़ लेना। नेक्स्ट वन, शी लाइक्स नॉट ओनली टू जॉग बट ऑल्सो टू स्लीप। अच्छा लिख दिया है क्या मैंने? हाँ लिखा ही है, सॉरी। शी लाइक्स नॉट ओनली जॉगिंग बट ऑल्सो स्लीपिंग, ये भी करेक्ट है बाय द वे। दोनों जेरेंड है। दिस इज जेरेंड, दिस इज जेरेंड, दिस इज इन्फिनिटिव, दिस इज इन्फिनिटिव। तो या तो जेरेंड जेरेंड और इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। So far, any questions, doubts, anyone? If you have any questions, please raise your hands. क्या पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यू लर्न मोर विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस बाय द वे। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने, प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट थ्री अगेन, ठीक है। लास्ट थ्री में क्या हो रहा है? नॉट ओनली के बाद में इंफिनिटिव आ गया यहाँ पर, बट ऑल्सो के बाद में इंफिनिटिव आ गया, टू प्लस वर्ब, करेक्ट है। ऊपर वाले में क्या था? नॉट ओनली के बाद में वर्ब आया था लाइक्स, और बट ऑल्सो के बाद में टू स्लीप आया था विच इज इन्फिनिटिव। दैट इज इनकरेक्ट। वर्ब एंड इंफिनिटिव कैन नॉट बी यूज्ड इन अ पैरेलल स्ट्रक्चर। इंफिनिटिव और जेरेंड जेरेंड। तो दैट इज अ रूल। कैन यू प्लीज अगेन एक्सप्लेन द नर्स एग्जाम्पल? नर्स वाला कहाँ था? हाँ, the nurse not only looks after the patient but also cooks for family. तो यार आपको मैंने बता दिया है, या तो she यूज करो या तो मत यूज करो, does not matter. The nurse not only looks after, it is a verb but also should be followed by a verb. So that means but also cooks for family. तो ये verb हो जाएगा यहाँ पर। Cooks also is followed by verb, not only is followed by verb. करेक्ट है। अभी क्लियर है अंशुमन? चलिए, now let's try to solve some questions. Let me show some parallelism based questions. Question number 13 everyone. Try question number 13. I am launching the poll. Question number 13. The poll has been launched. Come on, come on, come on. जूम करना है? चलो जूम कर लेते हैं। Come on everyone, last 20 seconds now. 50% of you have not responded as of now. Sir, is there a rule that two gerunds cannot come consecutively? नहीं, gerunds को तो consecutively आना चाहिए. We have to find out the correct one. Diksha, identify the correct one. 4% A, 66% B, 20% C and 11% have given option D as the correct answer. चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं. नहीं बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है.
द कमिटीज गोल्स इंक्लूड, तो हम लिस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, क्या है? इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, इंप्रूविंग जेरेंड, expanding outreach efforts, expanding gerund, and to increase infinitive. गलत हो गया, gerund infinitive गलत, ठीक है. The committee's goals include improving communication gerund, expanding outreach gerund, and increasing funding gerund मतलब correct. Okay. The committee's goals include improving communication, gerund, expansion, it's a noun, incorrect, and increasing funding, gerund, noun, gerund, incorrect. The committee's goals include improving communication, gerund, expanding outreach, gerund, and having increased फंडिंग अपॉर्चुनिटीज. नहीं, हैविंग इंक्रीज्ड, तो ये इंक्रीज्ड बन गया ना, हमको तो इंक्रीजिंग चाहिए था. हैविंग इज नॉट द जेरेंड हियर, हैविंग इज अ वर्ब, ये वर्ब है, ये जेरेंड होना चाहिए था, विच इज अगेन अ वर्ब हियर. तो हमको जेरेंड चाहिए, तो क्या बन गया? जेरेंड वर्ब. इनकरेक्ट. आंसर शुड बी ऑप्शन बी. एनी क्वेश्चंस, डाउट्स इन द 13th क्वेश्चन, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 14. ट्राई द 14th क्वेश्चन. इतने डिफिकल्ट नहीं होते ये क्वेश्चन जितना तुम सोच रहे हो, बाय द वे. दे आर इजी क्वेश्चंस, बस लॉजिक पता होना चाहिए. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. डन. यार इतना स्लो कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग यार? मतलब मैं नींद में, मुझे नींद लग जाएगी, इतना तुम देर लगा देते हो आंसर करने में. तुम तो यही चाहते हो. %13% ए, 60% बी, 25% सी, 1% डी. तो ए, बी और सी में मेजर कंफ्यूजन है. देखते हैं. द कंपनीज न्यू पॉलिसी विल एनहांस एम्प्लॉय बेनिफिट्स, स्ट्रीमलाइन द हायरिंग प्रोसेस एंड विल इंप्रूव. देखो, विल एनहांस, स्ट्रीमलाइन, विल इंप्रूव. तो या तो विल आप एक बार यूज करो या तो तीनों बार यूज करो. आपने यहां पर विल डाल दिया, लास्ट में विल डाल दिया, बीच में विल तो डाला ही नहीं. हाँ है ना? विल प्लस V1 शुड बी फॉलो थ्रू आउट, यहां पर मिसिंग है. क्लियर हुआ? इनकरेक्ट है मतलब. The company's new policy will enhance employee benefits, streamline the hiring process and improve workplace efficiency. देखो, will plus V1, then again V1, then again V1. Will common ले लिया. Makes sense, correct. Will plus V1, V1, V1. Correct. Will can be taken common. ठीक है. The company's new policy will enhance employee benefits, streamline the hiring process and improving. जेरेंड आ गया. हमको क्या चाहिए? will प्लस V1 चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ गया? VING आ गया. दिस मेक्स नो सेंस, बिकम्स इनकरेक्ट. तो आंसर कैन नॉट बी C एज वेल. ठीक है. द कंपनीज न्यू पॉलिसी विल एनहांस एम्प्लॉय बेनिफिट्स, will enhance. Okay, the hiring process will be streamlined. ये क्या हो गया? Passive voice. Passive voice. This part is written in passive voice. Other parts किसमें लिखे? First part active voice है, second part passive voice है, third part is also passive voice. Active, passive. Incorrect. I told you. या तो पूरा active या तो पूरा passive. Does anyone have any questions? Anyone? कुछ समझ में आ रहा है? Are you guys learning, enjoying, alive, breathing?
स्लीपिंग? क्या कर रहे हो, कुछ तो बता दो. Question number 15 then. Try 15th. 15th everyone. Come on, come on, come on. Yes, Ariman. Last 10 seconds. फाइव परसेंट ए, 92% बी, 1% सी, 1% डी. चलो अब समझ में आ गया. गुड. For the new project, the team must research market trends, must plus V1, V1 analyze customer feedback, and developing VING becomes incorrect. For the new project, the team must research market trends, analyze customer feedback, and develop new strategies. V1, V1, V1. Correct. For the new project, the team must research market trends. The analysis of customer, ये noun है. It's a noun. Incorrect. And developing, ये ing हो जाएगा. Incorrect. For the new project, the team must research market trends, analyze, and then which involves, ये तो नया clause आ गया. So that means again incorrect. The answer should be B then. Good, Harsharaj. Try 16th now. Try 16th. Follow the same strategy, Harsharaj. Come on, come on, come on. Last 10 seconds. Nine percent A, 14% B, 54% C, and 23% D. Wow, major confusion. The company prides itself on its dedication to innovation, commitment to customer service, and enhancing employee satisfaction. No. तो ये क्या हो जाएगा? Noun form. ये हो जाएगा noun form. ये हो जाएगा gerund form. Incorrect. The company prides itself on its dedication to innovation, noun form, commitment to customer service, noun form, and in enhancing. अभी देखो क्या हो रहा था, to innovation, to, और यहाँ पर in आ गया, और again same problem, gerund form becomes incorrect. हमको noun form चाहिए. ठीक है. The company prides itself on its dedication to innovation. ठीक है. Its commitment to customer service, correct है, and its enhancement of employee satisfaction. तीनों सेम है, तीनों सेम स्ट्रक्चर है. C is the best answer. Its commitment to customer service, its enhancement of employee satisfaction, its dedication to innovation. Correct है. The company prides itself on its dedication to innovation, okay, commitment to customer service, and employee satisfaction enhancement. क्या होना चाहिए था? Enhancement of employee satisfaction. Incorrect हो जाएगा. Answer should be C. 17th. Try 17th. Come on, come on, come on. Good, Harsharaj.
Never let your opposition know your next move. Is employee satisfaction enhancement wrong to say? It's not wrong to say, but it's not following the structure. Noun should come first now. Correct, Rijal. Good, good, Jagrat, good. Good, Nirvika. Come on, come on, come on. 5 seconds. सेवन परसेंट ए 11% बी 4% सी 79% डी अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बाकी है चलो देख लेते हैं द सेमिनार कवर टॉपिक सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नाउन है टीम कोलैबोरेशन नाउन है एंड वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट नहीं ये तो अलग आ गया यहाँ पर क्या आना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसा कुछ आना चाहिए था वो नाउन हो जाता ये कुछ अलग ही आ गया है नॉट पैरेलल स्ट्रक्चर इनकरेक्ट The seminar covered topics such as effective communication, team collaboration, managing conflict. Managing is a verb. ये सारे noun है तो noun noun verb हो जाएगा becomes incorrect. The seminar covered topics such as effective communication, team collaboration. ये क्या है noun phrase. How to manage conflict. How to incorrect हो जाएगा. We need noun. राइट ये वर्ब हो जाएगा मतलब एक क्लॉज बन जाएगा बेसिकली इट्स अ क्लॉज मैनेज इज अ वर्ब राइट तो इनकरेक्ट है द सेमिनार कवर्ड टॉपिक्स सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नाउन फ्रेज टीम कोलैबोरेशन नाउन फ्रेज एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नाउन फ्रेज नाउन 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 आंसर इज ऑप्शन डी प्लीज एक्सप्लेन 16th डी अगेन ओके what are these people doing please let us know even we want to improve what exactly do you mean Anshuman 16th D for Diksha तो conflict कहाँ थे हम 16th पे D हाँ the company prides itself on its dedication to innovation it's a noun phrase commitment to customer service noun phrase and employee satisfaction enhancement अब इसमें प्रॉब्लम क्या है हमने क्या यूज किया है पहले noun फिर preposition देन अ नाउन ऐसा यूज किया है राइट यहां पर देखो डेडिकेशन इज अ नाउन टू इज अ प्रेपोजिशन फिर अ नाउन राइट यहां पर भी कमिटमेंट इज अ नाउन टू इज अ प्रेपोजिशन कस्टमर सर्विस इज अ नाउन यहां पर क्या हो गया एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एनहांसमेंट ये क्या है इसमें कोई प्रेपोजिशन है क्या देयर इज नो प्रेपोजिशन एट ऑल तो इट्स नॉट पैरेलल स्ट्रक्चर देन हमको नाउन प्रेपोजिशन नाउन चाहिए जो कि कहां पर आया है देखो same structure follow हुआ है C में now is it clear Diksha is ways to manage conflict it's a noun phrase Aksa oh they were giving correct answers Anshuman चलिए next one question number 18 everyone 18 try 18th the poll has been launched no problem Shahnaz I was in fact surprised that you did not send me the text today in the beginning of the session because yeah usually you are the one who sends the first text तो मुझे लगा शहनाज नहीं आई क्या प्रॉब्लम हो गई आज बट एनीवेज एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना शहनाज आई थिंक विल बी एबल टू कवर अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना गुड निर्विका come on come on come on
Definitely, Shanaz. No problem. 9% A, 57% B, 3% C, and 32% have given option D as the correct answer. Major confusion between B and D. Okay. Let's see. The new software promises to be user friendly, efficient, and it improves productivity. User friendly phrase, efficient, it's kind of like it's a word. Then we have a word, efficient, basically both are nouns. So nouns, and then यहाँ पर एक clause आ गया, it improves productivity. It should be a noun, it becomes incorrect. The new software promises to be user friendly, okay, efficient, and improve productivity. Correct. What does it promise to do? It promises to be user friendly, to be efficient, and to improve productivity. So it does make sense as of now. ठीक है. The new software promises to be user friendly, efficient, and improving. ing आ गया. No. टू आया यहाँ पर देखो. ing नहीं आ सकता. The new software promises user friendliness, efficiency, and improved productivity. Improved productivity. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वर्ब आ गया यहाँ पर. तो बिकॉज वर्ब ऑलरेडी प्रोमिस हो चुका है ना, तो दो बार वर्ब आ गया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा ना. आंसर शुड बी ऑप्शन बी देन. इजी वन. व्हाट्स द रिलेशन, कहाँ गया क्वेश्चन, बिटवीन टू एंड ing. So 2 and ing, they are not used together in a general sense. बिकॉज 2 प्लस v1 होता है एंड जेरेंड में 2 नहीं आता है. टू बी यूजर फ्रेंडली, टू बी एफिशिएंट एंड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी. तो b प्लस 2 प्लस b v1 इंफिनिटिव, 2 प्लस b एफिशिएंट v1, 2 प्लस इंप्रूव v1. तो इंफिनिटिव ही तो है ये भी. I'll explain again. देखो, to be user friendly, UF is user friendly. To be क्या होगा? 2 plus B is 2 plus B, 2 plus V1. बोल दो आज, नहीं तो मैं वेट करते करते ही मर जाऊंगा. 2 plus V1 क्या होता है? एक घंटे से वही बता रहा हूं मैं. 2 प्लस v1 इज इन्फिनिटिव. तो टू बी तो एक वर्ब होता है ना. अगर किसी ने वर्ब्स एंड टेंसेस अटेंड किया होगा मेरा सेशन, तो उसमें मैंने बताया था टू बी इज एन इन्फिनिटिव. टू बी एक वर्ब होता है. ठीक है, ओके. बी अगेन कॉमन है यहां पर देखो. टू बी एफिशिएंट, टू बी एफिशिएंट, 2 प्लस बी इज इन्फिनिटिव. टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, टू इंप्रूव, 2 प्लस v1 क्या होता है? ये भी इन्फिनिटिव. तो तीनों तो इन्फिनिटिव हो गए. नो उर्वशी. Isn't improved productivity a noun? This is also true. The new software promises user friendliness, efficiency and improved productivity. अच्छा, यहाँ पर आपको चाहिए इन्फिनिटिव, बिकॉज आपको ना क्या मीनिंग निकालना है. इट इज यूजर फ्रेंडली, तो वो इट इज यूजर फ्रेंडली के लिए आपको टू बी प्लस यूजर फ्रेंडली चाहिए. अगर मैं यूजर फ्रेंडलीनेस बोलूंगा तो आप बोलोगे कि वो यूजर फ्रेंडलीनेस होने का प्रॉमिस कर रहा है. That's the meaning. The new software promises user friendliness, but user friendliness on the part of whom? On its own part or on someone else's part? जैसे B में क्या हो रहा है? To be user friendly मतलब the new software is user friendly. लेकिन promises user friendliness मतलब on whose part? कौन है user friendly? वो क्लियर नहीं होगा ना मीनिंग. मतलब इन अ वे ग्रामेटिकली दोनों आप देखो तो करेक्ट है ऑलमोस्ट, बट मीनिंगफुली बी इज अ बेटर सेंटेंस. इससे पता चल रहा है हु इज यूजर फ्रेंडली. क्लियर हुआ है? द पॉइंट इज
who is user friendly, what is user friendly, the software. तो is वाली मीनिंग कहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना. डी ऑप्शन में इज, टू बी का वर्ब फॉर्म होता है इज, वर्ब्स वाले सेशन में बताया होगा. तो इज वाली मीनिंग तो नहीं आ रही डी में. द न्यू सॉफ्टवेयर प्रोमिसेस यूजर फ्रेंडलीनेस, एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. तो इज वाली मीनिंग तो नहीं आ रही. आई मीन I understand that D is also grammatically correct, but meaningfully B is a better option. तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मीनिंगफुली आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाए. But always only softwares are user friendly. But Maitreyi, you have to make it clear, na? Right? See, Ariman, even if you're not getting it, understand the point that both are grammatically correct, but better structure is B. That's what I'm trying to say. So the tense should also be same after each comma. Yes, Maitreyi, absolutely. अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, the new software promises user friendliness, efficiency and improved productivity. To be user friendly, to be efficient and to improve productivity. वही पॉइंट है, मुझे बेटर स्ट्रक्चर बी वाला लग रहा है, इवन दो डी ऑल्सो डज मेक सेंस, बट ऑलवेज गो फॉर द बेटर स्ट्रक्चर. दैट इज द रूल. ओके एनिमेश, सॉरी आर्यमान. Let's try the 19th question now. 19th, everyone. Come on, come on, come on. Diksha, these are practice questions. Yes, Ariman, but then the point is कि infinitive तो तीनों में यूज हुआ है वो. You just need infinitive. That's the only point. Yes, Harsh. Done. 90% B. वाह, ट्रिक समझ गए तुम लोग. द रिसर्च टीम एम्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, बूस्ट प्रोडक्टिविटी बाय स्ट्रीमलाइनिंग वर्क फ्लोज, एंड बाय आ गया, इनकरेक्ट हो जाएगा. टू प्लस वर्ब देन V1, तो V1 एंड फिर आ गया जेरेंट, तो इट बिकम्स इनकरेक्ट. गुड आन्या. द रिसर्च टीम एम्स टू इम्प्रूव 2 plus V1, boost V1, streamline V1. तो V1B makes sense, okay. The research team aims to improve efficiency. Boosting is gerund, incorrect. यही से पता चल गया incorrect. And streamlined ये V2 V3 फॉर्म आ गया. The research team aims to improve V1 to boost and streamlining gerund. Answer should be option B. Question number 20. I hope there is no doubt here. Come on. V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अर्नव, कुछ समझ में आ रहा है क्या? गिव मी अ शाउट आउट, गिव मी अ चीयर, गिव मी समथिंग दैट मेक्स मी फील दैट यू आर अलाइव. यस, एब्सोल्युटली सो. ओके प्रनिश. गुड शहनाज. गुड सागर. हमेशा ट्रिक्स काम नहीं आएंगे. आई लाइक द बी. आई एम ब्रीदिंग अंशुमन. Can't say about being alive or not. 86% of you have given option B as the correct answer. Good, Jagrat.
The proposal outlines the objectives of increasing sales, enhancing market presence and how to reduce. क्या हो गया? Increasing is gerund, enhancing is gerund. यहाँ पे नया clause ही आ गया. Incorrect. The proposal outlines the objectives of increasing. One second. Increasing sales, enhancing market and reducing operational cost. Gerund, gerund, gerund. B is the answer. The proposal outlines the objectives of increasing sales, enhancing for enhancing market presence and reduction. Noun form. Incorrect. The proposal outlines the objectives of increasing sales, enhancing market and the reduction. Noun form, meaning gerund. Incorrect. Answer is option B. 21 everyone. सुदर्शन, जोर जोर से चिल्ला के सबको स्कीम बता दो तुम. Arnav, there is no specific video for that. Infinitive मैंने verbs and tenses में समझाया है. अगर नहीं हुआ है तो आपके लेक्चर में हो जाए, आपके बैच में हो जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा. %97 B. Okay. The research team is focusing on analyzing data, developing theories and to test hypotheses. So problem आ गई. यहाँ पर analyzing, developing था. The research team is focusing on analyzing data, developing theories, testing hypotheses. B is the best answer. Gerund, gerund, gerund. Focusing on the analysis of data. Noun form. Developing is gerund. To test infinitive. तीनों अलग अलग आ गए. Incorrect. The research team is focusing on analyzing data. Gerund. Theory development. Noun form. Testing hypothesis. Gerund. Incorrect. Answer is B. अच्छा, एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते रुको. 33rd, spot the error. 33rd में spot the error everyone. Spot the error. Come on, come on, come on. Yes, Anya. Okay, Urvashi. Hypothesis का मतलब theory, जागृत. Yes, Harsh. Yes, Menak. Which sentence, जागृत? Same point. Informally आप कुछ भी बोल सकते हो, because there is no one to judge there. But grammatically आप अगर formal देखो तो आपको rules follow करना पड़ेगा. Okay, हरजाब. %66 D, 20% C, 10% B, 3% A. रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो तुम लोग. The dogs in the first kennel are naughtier than the second kennel. अब सेम प्रॉब्लम, ये पैरेललिज्म का एरर हो गया. हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट कैनल को सेकंड कैनल से. डू यू अग्री? यही कर रहे हैं ना? नहीं भैया, भांग मत पिया करो ना. भांग ना पीना, चढ़ जाती है. ठीक है, तो वी आर कंपेयरिंग डॉग्स इन द फर्स्ट कैनल विथ डॉग्स इन द सेकेंड कैनल. बट कर किसको कंपेयर कर लिया हमने यहां? डॉग्स इन द फर्स्ट कैनल एंड द सेकेंड कैनल. गलत हो गया. डॉग्स इन द फर्स्ट कैनल देन दोज इन द सेकेंड कैनल. दोज रिफर्स टू डॉग्स. तो dogs in the first kennel, dogs in the second kennel. Answer is option D then. क्या कुछ क्लियर हुआ है? बोलो 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 बोलो. ओके आन्या. हर्षराज, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम लोग पढ़ाई करने के नाम पर क्या कर रहे हो. The ones. No, not the ones here.
वो दूसरे सेंटेंस पे यूज होगा। नहीं हर्ष। चलो, तो आई थिंक यहां तक के हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। नाउ आई वुड request that you guys solve these questions on your own. I'll upload both the concept files, the annotated question file, and the and not annotated wali question file as well by tomorrow. Download all the 3 files and try these questions on your own. एक बार आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आया है तो मुझसे पूछ लेना। By the grace of God, I will be alive until you write your examination. Is that clear? दीक्षा, इसका तो मुझे भी नहीं पता है अभी तक कि लीडर बोर्ड में किस बेसिस पे आते हैं। 34 भी देख लो। द मूवी वॉज ब्यूटिफुल, मूविंग एंड इट इंस्पायर्ड। नहीं, इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग क्यों? ब्यूटिफुल एडजेक्टिव, मूविंग एडजेक्टिव, तो इंस्पायरिंग की एडजेक्टिव होना चाहिए ना। यहाँ पे आपने क्लॉज बना दिया, इट इंस्पायर्ड, तो क्लॉज बन गया ये तो। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी डी। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन। डिड यू लर्न समथिंग न्यू बाय द वे? कुछ समझ में आया? हाउ वाज द सेशन? यस श्रेयश, गुड। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन। मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। यस दीक्षा। चलिए, बाय बाय।